آئیے ایسی خطابت کا ایک نمونہ ملاحظہ کرنے کے لیے دعوت دیں، ایک ایسے بے باک خطیب کو جس نے میدان خطابت میں اپنی ایک پہچان بنائی ہے۔ میرا اشارہ جامعہ شیخ العلوم کیندراپڑا کا ایک ابھرتا ہوا متعلم عزیزم حمزہ غازی سنمہو کی جانب ہے۔ ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی خطابت کا جوہر دکھلائیں۔ کرتا ہے رشک ہم پر زمانہ اسی لیے، کرتا ہے رشک ہم پر زمانہ اسی لیے، ہم میں ہے آج ہے خطیب سحر بیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ چار مصرے پیش کرتا ہوں، روزہ فرمائیں۔ صبح کرتے ہیں شام کرتے ہیں، صبح کرتے ہیں شام کرتے ہیں، ذکر خیر الانام کرتے ہیں، ذکر خیر الانام کرتے ہیں۔ ان کی عظمت بیان کیسے ہو، ان کی عظمت بیان کیسے ہو، جن کو پتھر سلام کرتے ہیں، صبح کرتے ہیں شام کرتے ہیں، ذکر خیر الانام کرتے ہیں۔ قابل سب تقریر میرے حضرت والد محترم، اسٹیج کی زینت بنے حضرات علماء کرام اور سامعین عظام، پردے میں رہ کر سننے والی میری ماں اور بہنوں، آج کی اس عظیم الشان جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر میں جس موضوع کو تخیلات کی وادیوں سے نکال کر لفظوں کا جامع پہنا کر دل کی بنجر زمین کو سیراب کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ ہر دور میں بے نقطہ رہا، اگلے کلمے میں نقطے لگتے رہے، لیکن لا الہ الا اللہ ہر دور میں بے نقطہ رہا۔ اللہ کیا اشارہ ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں توحید پہلے سے مکمل ہے۔ اگلا جملہ بتاتا رہا نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ لا الہ الا اللہ بے نقطہ آدم صفی اللہ میں نقطہ، لا الہ الا اللہ بے نقطہ نوح نبی اللہ میں نقطہ، لا الہ الا اللہ بے نقطہ ابراہیم خلیل اللہ میں نقطہ، لا الہ الا اللہ بے نقطہ اسماعیل ذبیح اللہ میں نقطہ، لا الہ الا اللہ بے نقطہ موسیٰ کلیم اللہ میں نقطہ، لا الہ الا اللہ بے نقطہ عیسیٰ روح اللہ میں نقطہ، لا الہ الا اللہ بے نقطہ یوسف صدیق اللہ میں نقطہ، لا الہ الا اللہ بے نقطہ یعقوب نبی اللہ میں نقطہ۔ جب میرے آقا کی باری آئی، حق تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے لا الہ الا اللہ بے نقطہ، اسی طرح محمد رسول اللہ بھی بے نقطہ۔ توحید مکمل تھی، اب نبوت مکمل ہو گئی، رسالت مکمل ہو گئی، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بھیج دیا، ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیج دیا۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا بھی عرفہ و اعلیٰ شریعت ختم ہے تجھ پر۔ سامعین بزم، اللہ رب العزت نے اس ارض و سما، شمس و قمر، لیل و نہر، بر و بحر کو وجود بخشنے کے بعد حضرت انسان کو زمین کی پستی سے اٹھا کر اوج سریا پہ لانے کے لیے امام الانبیاء محبوب کبریا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی سرزمین پر اس وقت مبعوث فرمایا جب ظلم کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھا گئے تھے، ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، حکومت شیطانی تھی، قتل و غارت گری کا بسیرا تھا، معمولی باتوں پر قد مرنا عام تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا
भैंस का कानून नाफिज था। अलगर्ज इंसानियत तबाही और बर्बादी के आखिरी दहाने पर पहुंच चुकी थी। दफातन चमनिस्तान दहर की किस्मत का सितारा हमीदा हुआ। हजरत इंसान की खुशबख्ती का मुकद्दर चमक उठा। जुल्मात को उजालों की खबर हुई कि यतीम अब्दुल्ला जिगर दोष आमेना सागे हरम हुक्मरान अरब व अजम कायद इंसानियत शहनशाह कौनैन इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज पीर सन 571 ईस्वी को बेबसर को बाबसर करने के लिए, बेनजीर को बानजीर करने के लिए, मुर्दा दिलों को हयात जवादानी देने के लिए, कयासिया और अकासिया की नखुवत का भरम तोड़ने के लिए, सैकड़ों और हजारों पुजारियों को एक ही दर पे झुकाने के लिए, मुल्कों की दूरी अक़वाम बेगानगी इख्तिलाफ और अलवान तफरीक ज़बान मिटाने के लिए सबकी ज़बानों पर सिर्फ एक ही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जारी करने के लिए नारे तकबीर, शान रिसालत, अजमत रिसालत, इस्लाम। बेबसर को बाबसर करने के लिए, बेनजीर को बानजीर करने के लिए, मुर्तादियों को हयात जवादानी देने के लिए, कयासिया और अकासिया की नखुवत का भरम तोड़ने के लिए, सैकड़ों और हजारों पुजारियों को एक ही दर पे झुकाने के लिए, मुल्कों की दूरी अक़वाम बेगानगी इख्तिलाफ और अलवान तफरीक ज़बान मिटाने के लिए सबकी ज़बानों पर सिर्फ एक ही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जारी करने के लिए काफ़िला नबूवत के आखिरी मुक़्तदा और क़स्र नबूवत के आखिरी सुकून बनकर तशरीफ लाए। सामिईन बज़्म वो ना आए होते तो अरुसमा की तख्लीक ना हुई होती, वो ना आए होते तो मौजों को रवानी ना मिली होती, वो ना आए होते तो सूरज को शुआए ना मिली होती, वो ना आए होते तो चांद को चांदनी ना मिली होती, वो ना आए होते तो सितारों को चमक ना मिली होती, वो ना आए होते तो चिड़ियों को चहक ना मिली होती, वो ना आए होते तो पहाड़ों को चट्टान ना मिली होती, वो ना आए होते तो परिंदों को उड़ान ना मिली होती, वो ना आए होते तो बेटियों को जिंदगी ना मिली होती, वो ना आए होते तो रब की बंदगी ना मिली होती, वो ना आए होते तो बेवाओं को इज्जत ना मिली होती, वो ना आए होते तो रमजान मुबारक का रोजा ना मिला होता, वो ना आए होते तो कुरान करीम के 30 पारों का नुज़ूल ना हुआ होता, वो ना आए होते तो अंबिया औलिया अत्किया अस्किया को एजाज ना मिली होती, वो ना आए होते तो नेकियों का मुआवजा ना मिला होता। मुझे कहने की इजाजत दे तो कह दूं, वो ना आए होते तो रब का पता भी ना मिला होता। सामिईन बज़्म अल्लाह तबारक व तआला जब अपने हबीब को पैदा करता है तो सर से लेकर पैर तक खूबियां ही खूबियां डालता है, अलिफ से लेकर या तक खुसूसियात डालता है। मैं आपको बताता चलूं जिसके बारे में हजरत आमिना फरमाती है जब से ये बच्चा मेरे बदन में आया है मैं अजीब सी कैफियत महसूस करती हूँ। मैं आपको बताता चलूं जिसके बारे में हजरत आमिना फरमाती है जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है मैं अगर पत्थरों पर कदम रखती हूँ तो पत्थर भी फूल बनकर मेरे कदमों के बोसे लेते हैं। मैं आपको बताता चलूं जिसके बारे में हजरत आमिना फरमाती है जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है मैं अगर धूप में चलती हूँ तो अपने रहमत का बादल मेरे सर पे साया करता है। मैं आपको बताता चलूं जिसके बारे में हजरत आमिना फरमाती है जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है मैं जिस दरख्त के करीब से गुजरती हूँ उस दरख्त के पत्ते भी मुझे झुककर अक़ीदत से सलाम करते हैं। मैं आपको बताता चलूं जिसके बारे में हजरत आमिना फरमाती है जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है मैं जिस जगह बैठ जाती हूँ वो जगह भी खुशबू से महक जाती है। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है कि मेरा पैगंबर अगर उंगली का इशारा करे तो अल्लाह चांद को टुकड़े करके खिलौना बना दे। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है कि मेरा पैगंबर अगर उंगली का इशारा करे तो अल्लाह सूरज को रोक कर नमाज का वक्त दोहरा दे। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है कि मेरा पैगंबर अगर उंगली का इशारा करे तो पहाड़ों के पत्थर भी नबी का कलमा पढ़ते नजर आए। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है कि मेरा पैगंबर अगर उंगली का इशारा करे तो अबू जहल के मुट्ठी पे बंद कंकर भी नबी का कलमा पढ़ना शुरू कर दें। मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरा नबी पूरी कायनात से अरफा व आला बरतर व बाला अकमल व अहसन अतीफ व अशरफ अफजल व अनवर मुहतरम व मुकर्रम मअज़म व मुहतशिम सारी कायनात एक तरफ, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात अक़दस एक तरफ। मेरे दोस्तों मेरे नबी की सीरत का ये उन्वान मैं तो कहा करता हूँ मैं तो ना कोई आलिम न अदीब न वाइज न शाहिद न मुकर्रिर न मुबल्लिग न मुसन्निफ न मुदक्किक, मैं तो ना कोई राइटर न कलमकार, मैं तो इन उलमाए देवबंद के जूतों में बैठने वाला एक अदना सा रज़ाकार हूँ। मैं तो इन उलमाए देवबंद के जूतों में बैठने वाला एक अदना सा वर्कर नौकर चाकर कारकुन खादिम हूँ। मेरी जबान में तो इतनी हिम्मत ताकत कुव्वत फ़क़त ही नहीं कि मैं पैगम्बर की शान को कमा हक़ का खराज अक़ीदत का सलाम पेश कर सकूँ। मैं अल्लाह के पैगम्बर की सीरत सूरत इज्जत अजमत रफ़अत मनक़बत अल्लाह के पैगम्बर का तक़द्दुस नामों से रिसालत शरीअत सदाक़त अदालत दियानत जुरअत शुजाअत सखावत मनक़बत इफ़्फ़त अजमत रहमत जलाल जमाल कमाल अतवारात अक़वालात आमाल किरदार गुफ्तार और उनके क़द्र ख़ाल में तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं इन उलमाए देवबंद की नक़ल अपने इन टूटे फूटे जुमलों से कर लेता हूँ ताकि पैगम्बर के मदद इसराई करने वाले उलमाए देवबंद की फहरिस्त लिस्ट में मेरा भी नाम आ जाए। मेरे दोस्तों वक्त बहुत कम है, अब मैं सरवर कौनैन साफ़ी कौसर शाफ़ा
हाय महशर आमिना के ज़र्र यतीम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हुरूफ तहज्जी सुनाकर अपनी बात को समेटना चाहता हूँ। तवज्जो करना। आजा मोमिन देख जरा हर सिमत फिजा में नबी नबी, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलज़ेब हवा में नबी नबी। कौन नबी? अजीज़ इंसान नबी, बासे कामिल बुरहान नबी, तासे तत्हीर की जान नबी, सबसे सखलैन की शान नबी, हर मख्फी बात का राज नबी, जिम से सिफात जवाज नबी, मकदूर नबी, तकदीर नबी, हाँ से हक की तस्वीर नबी, खास से खत्म रसूल नबी, खालिक का शहकार नबी, पैकर हुस्न जमाल नबी, दाल से दो जहाँ का बादशाह नबी, जाल से जीशान नबी नबी, रा से रवल हाल नबी, जा से जाहिर भी नबी, बेबदल नबी, बेमिसल नबी, मेरे सीन से है साक़ी भी नबी, सच्चा सुच्चा काफी भी नबी, शीन से है शाफ़े भी नबी, सौद से सौद ज़िक्र नबी, ज़ौत से ज़ामिन फ़िक्र नबी, तो से तरफ़ैन में नूर नबी, ज़ौत से पुरनूर ज़ुहूर नबी, रुतबे में रब के बाद नबी, रुतबे में रब के बाद नबी, ऐन से ऐनुल हक नबी, गैन से है गनी भी नबी, फा से फज़ल रब्बी भी नबी, मेरा काफ से क़िबला, मेरा काफ से क़िबला नबी नबी, काफ से काबा नबी नबी, गलाम से पूछो क्या है नबी, लौलाद के बाद फ़ज़ा के नबी, मीम से मुहम्मद पाक नबी, नून से नूर कुरान नबी, वाव से चेहरे वज़ुहा नबी, हा से हादी बरहक नबी, या से यक्ता शान नबी, ईमान नबी, इक़ान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी, ईमान नबी, इक़ान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी, कौनैन नबी के कदमों में, सबतैन नबी के कदमों में, इज्जत भी नबी के कदमों में, अज़मत भी नबी के कदमों में, सिद्दीक़ नबी के कदमों में, फारूक